بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کو کھل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مشورہ دے دیا۔ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو دیے گئے عشائیے سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جس مخالف کو ہم نے دیکھا وہ ملک توڑنا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں۔ شہباز شریف نے صدر کی جانب سے لکھے گئے خط پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کیا صدر کو معلوم نہیں تھا کہ نگران وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل 8 روز کا ہوتا ہے؟ جو شرائط درائط تھی اس کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی PDL اس کو سال کا اوسطاً 50 روپے بڑھانا ہمارے لیے ناگزیر تھا۔ سیاسی افراتفری، کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، کبھی دھرنا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسائل تھے اس کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا ایک ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی۔ سائفر کا جو معاملہ تھا وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے جال تانے مانے یہیں بنے گئے۔ میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن ہے ان سے مشورہ ہوا، میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا، آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی، مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے۔ یہ مرحلہ 8 دن پر محیط ہے۔ ان کے سیکرٹری نے بھی میرے سیکرٹری کو کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ خط نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے؟ میں ذاتی طور پر اس کے کہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں طے کرنا چاہیے، کیونکہ جس مخالف کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو پاکستان کو توڑ دینا اس کے لیے ایک کھلونے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے مشاورت مکمل ہو گئی۔ تمام رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے دیے گئے عشائیے میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہ شریک ہوئے۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اہم بیٹھک پھر لگے گی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، بتائے گئے اس عشائیے کے حوالے سے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے مصروف دن گزارا۔ لاہور اہلیہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر گئے تھے، وہاں سے واپسی پر انہوں نے جو ہے کافی مصروف دن یہاں پر گزارا۔ انٹرویوز ہوئے، اس کے بعد کچھ اہم ترین میٹنگز ان کی ہوئی۔ جو PM انسپیکشن سیل کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی ان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ نون لیگ کے لیڈران یہاں پر آئے اور ان سے ان کی مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ان کی PM آفس میں جو پرائم منسٹر جو بیٹ رپورٹرز کے ساتھ جو ہے ان کا ایک الوداعی جو ہے وہ سیشن بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو لیٹر لکھنے سے پہلے آئین پڑھ لینا چاہیے، ہمارے پاس اب بھی جو ہے وہ دن باقی ہیں، پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا ہے معاملہ، اور اس کے بعد جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس 2 دن ہیں، تو 8 دن کے بعد اگر وہ لیٹر لکھتے تو سمجھ میں آتی، لیکن ابھی ہی انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ 16 ماہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات بتائی کہ بہت ٹف ان کے لیے گزرے، اکانومی کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے کیا، دیگر معاملات کے حوالے سے بات کی۔ جو بڑی ایک سرپرائز جو ہے وہ ہوگی اور میٹنگ ہونی ہے راجہ ریاض کی اور ان کی پرائم منسٹر کی، اور اس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ہے اتفاق رائے کا قوی امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی آپ کا۔ سندھ اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر سندھ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی تحلیل کے لیے ایڈوائس ارسال کی تھی۔ سندھ اسمبلی کی تحلیل کر دی گئی ہے۔ گورنر سندھ نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ اسمبلی تحلیل کے اگلے ہی دن سپریم کورٹ نے قانون الٹ دیا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کا لدم قرار دے دیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ آئین سے متصادم ہے کا لدم قرار دیا جاتا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमे बाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। तमाम मुतासरा साइलीन सुप्रीम कोर्ट से रजू करना शुरू कर देंगे। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट 33 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ का तबसरे से गुरेज। सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे। मियां नवाज शरीफ का जवाब था, बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। ऐसा पहले तो लगता था सियासी जमातें खौफजदा हैं, आज के फैसले लगता है अदलिया में कुछ जजेस हैं वो भी खौफजदा हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे आज के फैसले के ऊपर सर? बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे। सर आपकी वापसी के ऊपर लगता है बहुत सारी अदलिया को भी खौफ है, सियासी जमातों को तो है ही। आपसे जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह भाई। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुर्शिद के मुकम्मल कंट्रोल में, कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आ गई। चश्म कुशा इंकशाफात। बुशरा बीबी अपने वज़ीर आज़म शौहर को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती रहीं। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी, सब कुछ डायरी में दर्ज। बुशरा बीबी गवर्नर राज लगने पर पहिया जाम हड़ताल की भी हिदायत देती रहीं। इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटरीट का ब्लैक बॉक्स है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर यरगमाल बनाया हुआ था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, किससे मुलाकात में कौन सा हाथ मिलाना है, तस्बीह किस हाथ में पकड़नी है, किस वक्त कौन से और किस रंग के कपड़े पहनने हैं, सब बुशरा बीबी ही बताती थी। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। और जो ये डायरी है, ये सिर्फ बुशरा बीबी की डायरी नहीं, ये बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। खान साहब की ज़हनी, जिस्मानी और जो स्पिरिचुअल एक सोचने समझने की ताकत थी, सबको उन्होंने यरगमाल बनाए रखा। यहाँ तक कि जो मेहमान उनसे मिलने आते थे, उनको उन्होंने किस हाथ से हाथ मिलाना है और कौन से हाथ को पीछे रखना है और किस में तस्वीर रखनी है और किस हाथ के उस दिन कपड़े कौन से पहनने हैं। और मुझे याद है कि ये खतून सोई हुई थी तो खान साहब जो है वो ऑफिस पहुंच गए और जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा जो कपड़े इन्होंने कहा था कि आज ये कलर पहनना है, दूसरे रंग आप पे नहूसत होंगे, तो आज आपकी फेवर में ये कलर है, तो वो खान साहब दूसरे कपड़े पहन के चले गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो कपड़े तो लटके हुए हैं। उन्होंने थरथल्ली मचाई और उन्होंने खान साहब को कॉल किया। जहाज टेक ऑफ कर गया हुआ था, हेली, वो ऑफिस पहुंच चुके थे। वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर की और उन्हें कहा कि अभी वापस आए। उन्हें वापस बुलाया और वो जिस रंग के कपड़े वो चाह रही थी वो उन्हें ज़ेब तन कराए और फिर उन्हें ऑफिस जाने दिया। यहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस था। दुश्मन के बुरे वक्त पर हम खुशी नहीं मनाएंगे। हुसैन नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने भी अटक जेल काटी है, कीड़े मकोड़े और लू भुगती है। अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी वहाँ पे कोई 3-4 माह जो है रहे। इसके अलावा मैं वहाँ पे था, गर्मी थी तो लू चलती थी और वो सुराखों के दरमियान से आती थी। सख्त सर्दी में सर्द हवाएं जो है दरिया अटक की तरफ से आती थी। कभी खुश नहीं होना चाहिए जो है किसी की मुश्किल के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23 अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। असफर मंजूर की भी ग्रेड 21 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 23 अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस मुतालिक। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए जो 1 से 4 अगस्त तक मुनक़दा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसकी सिफारिशात की
वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मजमूई तौर पर 82 अफसरान की तरक्की के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है उसके अफसरान के नोटिफिकेशन 9 अगस्त को ही जारी कर दिए गए थे। तरक्की पाने वाले बाज़ अफसरान के तकर्रुर तबादले भी किए गए हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जिन 23 अफसरों को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है उनमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मैंगल भी शामिल हैं। उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की देकर मौजूदा ओहदे पर ही खदमात जारी रखने की हिदायत की गई है। दीगर अहम अफसरान ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 19 के DG एंटी करप्शन पंजाब हैं सुहेल जफर चट्टा, उन्हें ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है और उन्हें पंजाब हुकूमत में खदमात जारी रखने की हिदायत की गई है। इसके अलावा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के मेंबर हैं असफर मंजूर, उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो पंजाब में तैनात है सुमेरा समद, उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की देकर पंजाब में खदमात जारी रखने। पेट्रोलियम डिवीजन में तैनात इब्रार अहमद मिर्जा को ग्रेड 21 में तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी हैं खजाना डिवीजन निशिता मरियम मोहसिन, उन्हें ग्रेड 21 में तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी खजाना डिवीजन मुकर्रर किया गया है। सिंध में तैनात हैं आगा वासिफ अब्बास कादिम। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने पुलिस और DMG अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैफुल्लाह डोगर, मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुसरत जबीं की ग्रेड 20 में तरक्की हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और मौसम इकबाल सिपरा की ग्रेड 20 में तरक्की हुई है। उनकी खिदमात पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने पुलिस और DMG अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैफुल्लाह डोगर, मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मुसरत जबीं की ग्रेड 20 में तरक्की हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और मौसम इकबाल सिपरा की ग्रेड 20 में तरक्की हुई है। लाहौर में मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तालिबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर की टॉपर तूबा समेत तमाम नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। मोहसिन नकवी का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स को स्कॉलरशिप देंगे, यही बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। फ्लैटिस होटल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पंजाब भर से पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 142 तलबा और तालिबात में लाखों रुपए के इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, पोजीशन होल्डर्स बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल टाइम गुजार के उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो किसी छोटी सी दुकान उन्होंने लगाई हुई है या कोई और चीज़ कर रहे हैं। वो लोग जितने ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं, बिकॉज़ पता नहीं किस किस मुश्किल से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, हर शोबे में काम करने वाले अफराद को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा। पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग वापस जाएं, पॉजिटिव सोच के साथ सोचें, यकीन करें इस मुल्क ने आगे जाना ही जाना है इंशाल्लाह ताला। इस मुल्क का फ्यूचर है ही है। इस मुल्क में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में आपका जो HR है वो बेस्ट, दुनिया का बेस्ट है। इस मुल्क में मिनरल्स, आपका एग्रीकल्चर। पोजीशन होल्डर्स तलबा ने अपने एजाज में तकरीब के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। इस तरह स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिल सकती है, आगे वो अपनी एजुकेशन फ्री कंटिन्यू कर सकते हैं जो थोड़े फाइनेंशियली लो लेवल पे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन पैदा होगी और उनमें मेहनत करने का हौसला पैदा होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जब प्राइजेस होंगे तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली स्टर होंगे, वो इवोक होंगे और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। CM साहब ने इनाम देना शुरू कर दिए हैं, तो उससे बच्चे मोटिवेट होंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे और दिल लगा के मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। गुजरांवाला में 1034 नंबर लेने वाले तालिब इल्म जमशेद अली ने कहा, वालदा ने घरों में काम करके उसको पढ़ाया। तो मेरी वालदा और मैं, हम लोगों के खेतों में काम करते रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उन्हीं की मेहनत है और जो उन्होंने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने मार्क्स लिए हैं। तकरीब में सूबाई वज़रा आमिर मीर, जमाल नासर, मंसूर कादर, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद, चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर मिर्जा हबीब और इरफान अहमद समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की।